Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming interview, or because you already have your results out of stage 1, right? So you were having so many different queries, right? You have emailed me, you have posted your comments in my different videos. So in this video I have compiled all of your queries. ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज आई थी, मैंने उन सबको कंपाइल किया है एंड आई हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट ऑथेंटिक आंसर एज मच एज आई कैन. So this video is going to be a complete interview guidance, right? Because you have already done the hardest part. Written examination already आपने qualify कर लिया है. Now what will be the next part and how you have to approach towards it, ठीक है? How you will ace the interview, right? So this video is very important. Don't forget to subscribe the channel, and if you are a newbie and if you generally find it useful, you can also hit the like button because it motivates me a lot. Now coming back to the topic, this was the very first and the most important question that I got every now and then. That can you please discuss or tell what would be the highest score in the written examination, or how much score do we need to ensure our name enlisted for the interview call? So let me change the color of the pen because we already have red. See, stage 1 results are out. ठीक है, stage 1 results are out. It means whoever have scored more than 50% marks in their written examination are qualified. I will be very precise here. ठीक है, कोई भी confusion मैं create नहीं होने दूंगी आपके mind में. I will make sure. So whoever have scored more than 50% or let's say X percentage of marks, I will not say X percentage because they will now decide what will be the cutoff. ठीक है, so in this particular stage 1 they have shortlisted those people who have scored more than 50% in the written examination. Now as per that we are having more than 465 or 480, let's say more than 450 are shortlisted. ठीक है, 450 are shortlisted in the stage 1. Now all of them will be called for interview? No, not at all. We have that 5x percentage. ठीक है, 5x times ही आपको बुलाया जाएगा. So how they will shortlist? So obviously they will shortlist on the basis of some marks. ठीक है, that marks will be the cutoff for this season. कि let's suppose क्या cutoff हो सकता है. So as per my prediction, as they are only going to call 1 to 5% of candidate per vacancy. ठीक है, एक सीट है तो 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, 25 है तो 125 बच्चों को बुलाया जाएगा. ठीक है, एंड दिस 125 is from all the like unreserved, OBC, ST, SC and like that. So official cutoff is not yet out. So this is a prediction. ठीक है, पहले से ये डिस्क्लेमर दे दे, दिस इज अ प्रिडिक्शन. नाउ एज फार एज आई हैव एनालाइज द पेपर, द कट ऑफ विल बी अराउंड 55. Like this will not 55. I have provided a range because we are already having SC, ST and also PWD and far more categories. So I have provided a range 55 to 70. If your score is more than 70, then you should not worry about anything. You have to prepare for the interview like anything. सब कुछ छोड़ के, सारे कियोस को छोड़ के, डिलेमा को छोड़ के, you are already in the list. ठीक है, इंटरव्यू कॉल आपको 100% आएगा. and I already know some of my student who are very sure that they are getting more than 75% marks. यानी 75 वो लेके आ रहे हैं after the deduction of the negative part. ठीक है, सो जिनका मोर देन 70 आ रहा है वो इधर उधर ना करके अपने इंटरव्यू पे फोकस करें. ठीक है, इंटरव्यू किस बेसिस पे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन अपीयर्ड, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एंड नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी. लाइक इफ एनी क्वेश्चन इज देयर जो ऑप्ट आउट होता है, या फिर अगर ये शिफ्ट में हुआ रहता तब, तो शिफ्ट में तो ये हुआ नहीं है. नाउ इंटरव्यू टू वैकेंसी रेशियो अडॉप्टेड बाय ICMR. सो इट इज़ 1:5. सो सबको कॉल नहीं आएगा, जिसका एक सर्टेन
कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आया उन्हीं को बस कॉल आएगा। तो आई होप कि ये क्वेरी का मैंने आंसर दे दिया है, कितने मार्क्स होने चाहिए ये अब आपको क्लियर है। नाउ सेकेंड, व्हेन विल बी दी इंटरव्यू, और इट विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो सी, ICMR साइंटिस्ट B for medicos, इट हैपेंड वाया ऑनलाइन मोड। ठीक है, जून 1 से 5 तक ये इंटरव्यू चला है, यानी 5 दिन तक चला है एज पर वॉट एवर नंबर्स दे हैव शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, तो देर आर चांसेस दैट योर इंटरव्यू विल ऑल्सो बी इन सेम ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड होगा बिकॉज ऑफलाइन विल अगेन केओटिक हो जाएगा उनके लिए भी एंड ऑल्सो फॉर द एस्पिरेंट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वॉट एवर बी दी मोड, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, यू हैव टू जस्ट एस इट। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। नाउ डेट, कब होगा इंटरव्यू, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब 17th को आया था स्टेज 1 का रिजल्ट। ठीक है, वेट फॉर अबाउट अ मंथ और सो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नियरली जुलाई के 2nd या 3rd वीक में वो लोग स्टेज 2 या फिर इंटरव्यू लिस्ट प्रोवाइड कर दे। इंटरव्यू लिस्ट वो लोग अगर प्रोवाइड करते हैं देन ऑल्सो दे विल बी प्रोवाइडिंग 15 to 20 days ऑफ टाइम। ठीक है, इतना टाइम तो वो देंगे एज पर ऑफिशियल सोर्सेज एंड जितना भी मैंने ICMR साइंटिस्ट B का भी देखा है टाइम है उसके अकॉर्डिंगली भी। सो मान के चलिए कि जुलाई हमारा इसमें लग जाएगा, एंड अगर बीच में कोई और फर्दर डिले ना हुआ और कोई हर्डल ना हुआ देन योर इंटरव्यू विल बी इन अगस्त मिड से लेके एंड तक। ठीक है, ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब बीच में कुछ नहीं आता है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो saw and experienced the previous ICMR interview that happened after 1 or 1.2 years after the written examination. So there was something. So ऐसा इस बार नहीं होगा hopefully because the organizing body is AIIMS Delhi, right? तो ये भी आंसर कर दिया मैंने। नाउ ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत बार मिलता है, DM में भी मुझे मिलता है, आई एम ओनली MSc, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, PhD नहीं है मैम, कैसे होगा। सो सी, आपको एलिजिबल ICMR ने खुद किया है। ठीक है, ये पढ़ो, आपको एलिजिबल ICMR ने खुद किया है बिकॉज in the advertisement it is clearly written that MSc passed students are eligible. Now see, for MSc candidates your selection will depend much more on how confidently and scientifically you are answering the questions of the panelist. A strong MSc candidate can absolutely outperform a weak PhD candidate in the interview, right? तो ये बात याद रख लो कि अगर आप सिर्फ MSc अपने आप को कहते हो बट यू आर हैविंग इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज, इन डेप्थ आपके कोर रिसर्च के जो पार्ट्स हैं वो आपको पता है, यू हैव अ वेरी प्रो कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द करंट बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल रिसर्च, देन योर सिलेक्शन इज गारंटीड। क्योंकि एक वीक PhD को आप एक्सपीरियंसड हो तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का भी आई होप कि मैंने आंसर दे दिया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, right? So I have already discussed so many things. Again, I am providing one key point. C, project plus techniques plus core concepts, ICMR knowledge plus confidence is equals to high interview score. Now, again I am saying that इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे ही सिलेक्शन डिसाइड होना है, क्योंकि रिटन का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा अनलेस देयर इज अ टाई इन बिटवीन 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपने टेक्निक सीखी होगी तो किसी भी चीज़ का कोर कंसेप्ट आपको पता होगा, और ICMR का वर्किंग, ICMR किस लिए है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने इंस्टीट्यूट हैं, ICMR का कैसे वर्क फ्लो है, पाइपलाइन कैसे काम करता है उनका, ये सारी चीज़ें अगर आपके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो, कॉन्फिडेंटली हर चीज़ आंसर कर सकते हो, देन आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, माइंड में ये डाल के मत लेके जाओ जो नेगेटिव कहता है कि नहीं तुमको तो कोई लेगा ही नहीं, PhD वालों को ही लेगा।
आप उनको जवाब दो कि आप शांत रहो, मुझे ले या नहीं ले ये डिसाइड होगा इंटरव्यू के बाद, बट अपने तरफ से मैं 100% दूंगा, ताकि दूंगा या दूंगी ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो। तो जो कोई भी कुछ कह रहा है उसका मुंह बंद करो, चुपचाप ऑनेस्टली जाके आंसर करो, एंड देन आपका पार्ट हो जाएगा, रेस्ट डिपेंड ऑन देम। अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, फोकस ऑन दीज एरियाज। अपना डिसर्टेशन किस में है, प्रोजेक्ट वर्क किस में है, उसको जस्टिफाई करो। एंड टेक्निक मेंशन इन योर सीवी, ये लेटेस्ट टेक्निक मैंने मेंशन की है, वो पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट फंडामेंटल एंड बेसिक्स होने चाहिए, जो क्वेश्चन जिसमें आया है आईसीएमआर का, इम्यूनोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोस्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नाउ करंट बायोमेडिकल डेवलपमेंट, ठीक है, क्रिस्पर क्या है, mRNA वैक्सीन क्या है, वन हेल्थ वन नेशन अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने थ्योरी में पढ़ाई हैं, तो वो आप उसको देख सकते हैं। आईसीएमआर स्पेसिफिक टॉपिक क्या होगा, एथिक्स क्या है, जीसीपी क्या है, डिजीज सर्विलेंस क्या है, आईसीएमआर का क्या नेटवर्क है, हाउ आईसीएमआर वर्क्स, हाउ दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दी पब्लिक, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों पे, इसके अलावा प्रिपेयर फॉर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वुड यू डायग्नोस एन आउटब्रेक, वाई यू आर यूजिंग QPCR इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल PCR, हाउ वुड यू डिज़ाइन अ केस कंट्रोल स्टडी। और ये जितने रिसेंट मैंने बायोमेडिकल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, नेवर ब्लफ। कोई चीज़ आपको नहीं पता है, स्वीट सा कॉन्क्रीट सा आंसर दे दीजिए, आई एम सो सॉरी, आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट एट द मोमेंट, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें एकदम से याद नहीं आती है। उसको अगर आप घुमा फिरा के आंसर देने की कोशिश करेंगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जस्टिफाइड आंसर देना होगा। टेल अस अबाउट योर सेल्फ, स्ट्रांगली प्रिपेयर करो 2-3 मिनट में। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन ICMR, वाई शुड वी सिलेक्ट यू, एंड कीप योर आंसर्स कंसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड। ये मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में भी बताया है। So this is all for the day. If you have any more question, do comment below. I will be happy to answer. Don't forget to subscribe the channel, and thank you so much for watching.